हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माइंडफुल पेरेंटिंग सर्कल। आज हम बात करने वाले हैं हेल्दी फूड हैबिट सीरीज की स्पेशल वीडियो की, जहां मैं आपको एक इजी रेसिपी बताऊंगी एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्लोज टू माय हार्ट। मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम मेकिंग इट फॉर माय चिल्ड्रन। सो आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं, ये तो बहुत ही ज्यादा स्पेशल है, क्योंकि जो रेसिपी मैं आज आपको बताने वाली हूँ, दैट रेसिपी इज वेरी वेरी इजी। आपका ब्रेकफास्ट एक दिन का तो मैं बहुत सही करने वाली हूँ, क्योंकि बच्चे इसे बहुत पसंद करते हैं। ये हेल्दी भी है एंड प्रोटीन रिच है। सो मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखें कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट में, कार्बोहाइड्रेट जो होता है वो बच्चों को एनर्जी देता है, बट जो प्रोटीन होता है वो ग्रोइंग बेबी की बॉडी को बिल्ड करता है। ज्यादातर बच्चे खाते हैं राइस, रोटी, ब्रेड, पोटेटो, फ्रूट्स लाइक बनाना, एप्पल एंड मैंगो। These are carbohydrate rich food, but what we have to do, we have to eat something protein as well. सो प्रोटीन के क्या बेनिफिट हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में जानेंगे। बिफोर आई विल टेल यू द रेसिपी, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई प्रोटीन आर इम्पॉर्टेंट फॉर योर चाइल्ड ग्रोथ। So, as everyone know, most of the parents are searching these days what is good for my child, and some of them are giving, some of them are not giving, because depend upon the parents to parents. So protein is the building block of your child body. अगर आपका बच्चा टीन एज में है तब तो आपको कंपल्सरी देना ही देना है, लेकिन अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो आप उनको हेल्दी हैबिट फॉर्म कर सकते हैं। जैसे it's just like a brick that needed to build a strong house. So protein is needed to build a strong child. So let's understand few of the benefit of protein. First, it support the physical growth of your child. Height हो गया, weight हो गया, strong muscle हो गया, bone हो गया, healthy skin, hair, nail, everything that depend upon protein. आपका स्किन में कभी कभी टिश्यू रप्चर हो जाता है तो वो भी प्रोटीन से ही हील होता है। तो मोस्ट ऑफ देम, जैसे आप जिम जाने वाले, इफ द पीपल आर गोइंग टू जिम, दे टेक प्रोटीन जस्ट बिकॉज दे नो दैट मसल कैन टीयर. So it is very important for growing babies also. So growing body need protein every single day. So it is very important that you know whatever you are taking in your plate, or for your child you are making plate, find out how much is the protein. That should be at least 60% protein in your plate. सो कार्बोहाइड्रेट शुड बी लेस। दूसरी ये करता है, ब्रेन डेवलपमेंट को भी इम्प्रूव करता है। अगर आपका बच्चा अच्छा प्रोटीन ले रहा है तो उसका कॉन्सेंट्रेशन, उसका फोकस सही होगा, उसका मेमोरी एंड लर्निंग पावर इंक्रीज होगी, एंड ब्रेन डेवलपमेंट इन अ पॉजिटिव वे एंड फास्टर होगा। दैट्स व्हाई प्रोटीन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। Third thing is that it gives long lasting energy. Like protein keeps kid active for longer hours. They get less tired during the day, and they crave for junk food very less. So this is very important, because these days keeping away from junk food, it is very difficult. So you can give protein rich diet so that they will not feel hungry also. Fourth important benefit is, if we are talking about strong immunity, because so many flus are going on, like my child, younger child is not well, and my husband is not well. So many immunity means, if your immunity is strong, you can fight with all these diseases without any medicine, and on with less medications. So protein helps the body to fight with the infection. They recover fast from the illness, and to stay healthy and strong, it is very important. A healthy body is very important. So it will not become in one day. It will not become like 20 year you are eating junk and then you are thinking that your body will recover within 1 year or 2 year. You need a long thing to work on it. So better, as a parents, we should focus on the diet of our children in the early age. So, and one more important benefit is this, that it repair the tissues. Gym going people are using protein just because of this. And your children are also running, falling, playing, growing. The protein helps to repair the and renew the body tissues daily. So
नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि अच्छा प्रोटीन के बारे में आपने बोल तो दिया बड़ा लंबा चौड़ा चिट्ठी, लेकिन कौन कौन से फूड हैं जो प्रोटीन रिच होंगे। Most of the parents are searching that, and you should search also कि which all food are protein rich food, क्योंकि ना तो मैं डॉक्टर हूँ ना डाइटिशियन हूँ। आई ऑल्सो सर्च थिंग एंड देन फाइंड आउट द बेनिफिट, उसके बाद मैं अपने बच्चे पे अप्लाई करती हूँ। जैसे कि प्रोटीन रिच फूड की अगर मैं बात करूं, जैसे एग हो गया, मिल्क हो गया, कर्ड योगर्ट हो गया, पनीर हो गया, चीज हो गया, दाल, चना, राजमा, नट और सीड, और सोया और टोफू। इसमें से बहुत सारी चीजें तो बच्चे नहीं खाते हैं, जैसे मिल्क, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बच्चे को मिल्क डाइजेस्ट नहीं होता है, कुछ लोगों को कर्ड नहीं होता है, कुछ लोगों को सोया या टोफू जैसी चीजें बेनिफिट नहीं करती है। तो डिपेंड करता है कि आप फाइंड आउट करना है कि मेरे बच्चे को कौन सी चीज अफेक्ट करती है या फिर वो टॉलरेट नहीं कर पाता उस चीज को। सो अगर आपका बच्चा एगिटेरियन है तो आप इस रेसिपी को यूज कर सकते हैं। सो अब बात आती है एग की। सो आज जो मैं रेसिपी बताने वाली हूँ विच इज वेरी इजी, उसमें बहुत ही कम चीजें लगने वाली हैं, जैसे कि आप एग, ब्रेड, चीज, शुगर, सॉल्ट। सो अगर आप इस चीजों से एक ऐसी चीज बना सकते हैं कि आपका बच्चा बोलेगा मम्मा, इन स्नैक्स ही इज आस्किंग, इन ब्रेकफास्ट ही इज आस्किंग, एंड इट इज हेल्दी ऑल्सो। सो सुबह का टाइम वैसे भी बहुत हेक्टिक होता है, स्कूल का टिफिन, ऑफिस, सब कुछ एक साथ चल रहा होता है। चाहे आप कुक की ही बात करें, आपको उसको भी एक चीज बतानी होती है कि ये बनाना है। इसलिए मैं आपको कुछ ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो आपके बच्चे खुशी खुशी खाएंगे। बनाने में 5 से 7 मिनट लगेगा, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये हेल्दी रेसिपी है। सो लेट्स start, because egg I am making egg cheese sandwich. So बहुत लोग कहते हैं कि चीज बच्चों को मत दो, हार्ट की बीमारी हो जाएगी, शुगर मत दो, हाइपर एक्टिव हो जाएगा। लेकिन आई एम टेलिंग यू एज अ पेरेंटिंग कोच, एज अ मदर ऑफ 2, कुछ हाइपर एक्टिव नहीं होते यार। आपको देखना है कि आपका बच्चा कितना खा रहा है। अगर आप एक्सेस में कोई भी चीज देंगे, इवन हेल्दी चीज भी देंगे, दैट विल नॉट बेनिफिट फॉर योर चाइल्ड। सो लिमिट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रेस्ट्रिक्शन नहीं करनी है, आपको एक बैलेंस बनाना है, लिमिट में दिया करो। जैसे कि फूड में अगर आप शुगर भी देते हो, इट्स ओके। जब बच्चा घर पर बैलेंस वे में चीज या शुगर खाना सीखता है, तो वो ओवर बाहर भी कुछ ऐसी चीजें नहीं खाता। आई हैव सीन मेनी पेरेंट्स, दे देमसेल्फ आस्क फॉर द पिज्जा, चीज बस पिज्जा दे दो, मतलब इतना चीज डला होता है, तो डेफिनेटली यू आर डूइंग रॉन्ग। लिमिट में कोई भी चीज आपका बच्चा खा सकता है। तो अगर आप भी सुबह ये सोच रहे हो कि क्या बनाऊं, तो इस मंडे जरूर इस रेसिपी को ट्राई करिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल है, बहुत इजी है। आपको थोड़ी सी प्री प्रिपरेशन करनी है, और आपके बच्चे बार बार मांगेंगे। आप जरूर कमेंट बॉक्स में भी लिखिए। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे बनती है। मैंने इस रेसिपी का छोटा सा वीडियो बनाया है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि मेरे जो वीडियोस होते हैं उसमें मोस्टली बहुत ही सिंपल होते हैं, क्योंकि आई डोंट हैव एक्सपेंसिव कैमरा। सो मैं सिंपल वे में बनाती हूँ। आई डोंट हैव कैमरा मैन, मैं अपने से ही बनाती हूँ, क्योंकि आई वॉन्ट टू हेल्प यू पीपल। आई वॉन्ट टू हेल्प यू पीपल, दैट्स ऑल। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये रेसिपी एग चीज सैंडविच है। सो सबसे पहले हम अंडा लेंगे। मैंने कुछ नाची एग लिए हैं और कुछ नॉर्मल एग लिए हैं, क्योंकि ये दोनों के मिक्सचर से अच्छा बनता है। सो हम इसे इस तरह से काट काट लेंगे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया, बीच से कट लगाना है। आपको सारे अंडों को छिल लेना है, और प्रॉपरली जो येलो पार्ट है उसे आपको निकालना है, क्योंकि येलो पार्ट उसमें नहीं रहना चाहिए। हम ब्रेड लेते हैं, ब्रेड बहुत ही अच्छा होना चाहिए। हम कुछ सॉल्ट और शुगर लेते हैं, क्योंकि बहुत छोटी छोटी पिंच उसकी डलेगी। एंड मैंने कुछ बटर लिया है, ये गार्लिक बटर है, आप सिंपल बटर भी ले सकते हैं। और चीज के कुछ स्लाइसेस मैंने लिए हैं। ये सॉल्ट है, शुगर है, इसका बहुत छोटा छोटा पिंच इसमें डलता है। तो ये सारी चीजें आप प्रिपेयर कर लीजिए, चाहे आप रात को प्रिपेयर करके रखिए, मॉर्निंग में इजी होगा, और चाहे आप उसी वक्त प्रिपेयर कर सकते हैं।
नाउ हम बताते हैं कैसे लगाना है। ऐसे आप एक ब्रेड लीजिए, उस पे बटर को स्प्रेड कीजिए। आपको दोनों ब्रेड्स पे बटर स्प्रेड करना है। प्रॉपर्ली ब्रेड पे बटर स्प्रेड होना चाहिए। बच्चों को इतना बटर देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अभी एक एग को एक साइड लेके दूसरे एग को दूसरी साइड लेके आपको रखना है, और आप चीज इसके बाद इसके ऊपर डाल देंगे, और फिर हाफ हाफ एग फिर से रखेंगे। एग अगर छोटा है तो हाफ हाफ रखिए, अदरवाइज आप 1/4 भी बना सकते हैं। एक चीज सैंडविच बनाने में 3 एग लगते हैं। अगर बड़ा है, अगर छोटा है तो 4 एग भी लग सकते हैं। आप शुगर और सॉल्ट को स्मॉल क्वांटिटी में स्प्रिंकल कर लीजिए, और इसको दूसरी ब्रेड को इसके ऊपर रखकर आप सैंडविच मेकर में डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने डाला है। आप इस तरह का सैंडविच मेकर ले सकते हैं, वो बहुत ही अच्छा होता है क्योंकि कट करके आपका सैंडविच रेडी कर देता है। इसी तरह से आप अदर सारे सैंडविच बना सकते हैं और फिर उन्हें प्रिपेयर कर सकते हैं। आपकी रेसिपी वही रहेगी, आपका प्रोसेस भी वही रहेगा। आपको सिर्फ उसको प्रिपरेशन सेम तरीके से करना है। ये बहुत ही जल्दी हो जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से हो जाता है। मैं एक बार फिर से दिखा रही हूँ ताकि आपको याद रहे कि कैसे ब्रेड और चीज को रखना है। फिर आपको सॉल्ट स्प्रिंकल करना है, और शुगर को स्प्रिंकल करना है। उसके बाद आप सिर्फ उसके ऊपर दूसरा ब्रेड रख देंगे, और सैंडविच जो है इस तरह से रेडी बनकर तैयार होगा। आप उसे अपने आई होप आपको रेसिपी बहुत ही इजी वे में समझ आ गया होगा। मैंने बहुत अच्छी तरह से, मैं शायद रिकॉर्डिंग नहीं कर पाई, लेकिन मैं आपको फिर से आपको बता रही हूँ कि आपको एक ब्रेड लेना है, उसके ऊपर आपको बटर स्प्रेड करना है, उसके ऊपर आपको हाफ हाफ एग रख देना है डायगोनली, एंड देन आप उसके ऊपर अगर चीज डालेंगे, चीज के बाद आप अदर साइड भी हाफ हाफ एग रख देंगे। अगर एग छोटा है उसके ऊपर आप दूसरा ब्रेड रख देंगे। ये सैंडविच रेडी हो जाएगा। अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट लग रहा है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, मैं आपको जरूर बताऊंगी। इस रेसिपी को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिखकर आपको भेजूंगी। आप उसे बना सकते हैं, और मुझे जरूर बताइए कि ये रेसिपी आपको, आपकी फैमिली को, आपके बच्चों को कैसी लगी, और आप इसे वीक में कितनी बार बनाते हैं। मैं तो जब भी मेरे बच्चा कभी बोलता है कि मम्मा भूख लगी है, कुछ खाने को है, तो मैं इमीडिएटली वो बना देती हूँ, क्योंकि एग बॉईल करके मैं मोस्ट ऑफ द टाइम रखती हूँ। मेरा रूटीन है कि मैं अपने बच्चों को 3 से 4 एग हर रोज देती हूँ, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं। तो मेरा बड़ा बच्चा तो टीन एज में है, जैसे 10 ईयर का है, तो उसको तो मैं देना कंपलसरी है। लेकिन मेरा छोटा बेटा भी 5 ईयर के एज का है, वो भी 4 एग आराम से खा लेता है। तो आप अपने बच्चों को ये सब चीजें जरूर दीजिए, अगर वो एगिटेरियन है, और प्रोटीन रिच फूड जरूर दीजिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। ये आपकी बच्चे की हेल्थ एंड आपके बच्चे की ग्रोथ को बहुत अच्छे से करेगा। तो आप जरूर बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, एंड मुझे अगले हफ्ते कौन सा वीडियो बनाना है आप प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आप ब्रेकफास्ट के लिए, लंच के लिए और डिनर के लिए किस चीज के लिए वीडियो चाहते हैं कि मैं बहुत इजी रेसिपी बताऊं। मेरा वीडियो रेसिपी से ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है कि क्यों ये फूड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेसिपीज तो आप वीडियो में यूट्यूब में डालोगे तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी, लेकिन उसके बेनिफिट क्या है, क्यों बच्चों को देना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है, वो बहुत जरूरी है। तो मेरा मेन मोटिव वही होता है। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, एंड कीप शार्पनिंग लव द वे यू आर डूइंग। थैंक यू।